the PPT, you can easily understand what I want to share the information with you all. So just a minute, I am sharing my screen. Now it is visible. Sir, it is visible. Perfect. Okay. So this is my topic and given by the organizers. So I have to talk with you all and some discussion with you all on the topic indigenous knowledge of animal behavior and husbandry practices in this 7 days training program, online training program. This is organizing by Adamas University with collaboration of Meadow Agriculture. As Dr. Gajan already given detail about me, was once again I am giving my introduction. I am Dr. Mayank Dubey, working as assistant professor in Department of Livestock Production and Management, College of Veterinary and Animal Sciences at Bandha University of Agriculture and Technology. It is situated at Uttar Pradesh, India. This topic is extremely important in today's context, where we are trying to balance productivity with sustainability, especially in livestock systems. Just indigenous knowledge provides us with practical, low-cost, and time-tested solutions, which are highly relevant even in modern scientific agriculture and livestock systems. So, what is indigenous knowledge? Indigenous knowledge, often referred as IK, ITK in some literature, it shows IK, and some literature we can see ITK also, is the knowledge that has been developed by local communities over generations, where we got information, we get information from our parents, grandparents, great-grandparents, and ancestors, so on, continue. So this type of information, it is location specific, meaning it varies from region to region, depending on climate, resources, and their culture also. It is primarily transmitted orally from elders to, as I earlier told, as elders to younger generations. One of its biggest strengths is that it is low cost and resource efficient, making it highly suitable for smallholder farmers also. Another important feature is that it is dynamic and adaptive. That means it continuously evolves based on new experiences and environmental changes. If any environmental changes occur, if any experience is also count in that scenario, it is also include in the scenario also. This knowledge is not documented in books, but it is deeply rooted in practical experience and observations of our society, of our community, in different communities, different rural societies also. What is the concept and importance of indigenous knowledge? Indigenous knowledge in livestock systems covers a wide range of practices. It includes understanding animal behavior, feeding systems, disease diagnosis, and breeding practices. Farmers use their experience to make decisions regarding animal management. The importance of this knowledge lies in the fact that it helps farmers survive under resource scarcity conditions, where resources are not available in that condition. It reduces their dependence on external inputs like costly feed, medicines, and other infrastructures. It also enhances climate resilience as farmers adapt their practices according to their environmental changes and their environmental comfort, we can say. So, therefore, indigenous knowledge plays a crucial role in supporting small and marginal farmers who form the backbone of Indian agriculture or Indian livestock system.
This is the conceptual framework of indigenous technical knowledge or ITK, how it works. Now let us understand how indigenous technical knowledge is developed actually. The process begins with the local environment where farmers closely observe animals and natural conditions. Through continuous observation and experience, they identify patterns and relationship between animals and their atmosphere where they are rearing these animals. Then comes trial and error, where farmers test different practices and found some errors, found some mistakes. So these trial and error. Then successful practices are retained and gradually become the part of traditional knowledge. This knowledge is then, we can say, transmitted over the next generation and further refined over time to time. Thus, indigenous knowledge is not, we can say, static. It is continuously evolving and adapting. So after when this started and it goes to adaptation level of that farmer level or other consumer level. Importance of IK in livestock. Indigenous knowledge contributes significantly to livestock production systems also. It promotes sustainability by utilizing local resources efficiently. It reduces dependency on external inputs, thereby lowering production costs also. It also helps farmers manage livestock under adverse climatic conditions. For small and marginal farmers, this knowledge is not just useful, it is essential for survival of them. In next slide, we can see the status of livestock currently as available on different sites. Now we can see here, we can take a look on livestock wealth of the country. What is the livestock wealth this time? So we know generally India has one of the largest livestock population in the world. According to the livestock census 2019, it was 20th livestock census of country. There has been an overall increase, we can see, in livestock populations, about 4.63% growth in total livestock populations. And we can see here goat and sheep populations have increased significantly, indicating their adaptability and economic importance as well. On the other hand, we can see animals like camels, donkeys, and pigs have shown some decline in the in this table and this data also. And we can see the last column, poultry has shown remarkable growth, reflecting its commercial importance, showing 16.81% of growth in this time presently. So we can see this shift indicates that farmers are moving towards more resilient and economically viable species that are becoming more viable in the sense of economics, in the sense of profit generations. So they are using these, they are rearing these enterprises, these species in their livestock. Yeah, good evening. सर मेरा ये कहना है कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। अच्छा तो अच्छा, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ और प्रॉपर इंग्लिश में तो और नहीं हूँ, तो सर प्लीज हिंदी में थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैं मिक्स करता चलूं। हाँ सर, बाय में कर दीजिए सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था किस तरह का क्राउड है, मतलब अगर ओके सर। मिक्स्ड क्राउड है तो मैं कंटिन्यू करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू करूंगा। इंग्लिश मीडियम जो प्रेफर कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है? बाकी मैं आई विल डिस्कस इन हिंदी, ओके? हियर इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो ग्लिम्स ऑफ मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, मतलब लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स का जो मैंने एक टेबल इस तरह से बना दी है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है 2025 से, उससे लिया है मैंने डेटा। इसमें आप देखोगे मिल्क प्रोडक्शन लास्ट ईयर जो था 23-24 में 239.30 मिलियन टन से अब हम लोग 247.87 मिलियन टन, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। तो 3.58% का इंक्रीज है यहाँ पर। जो लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है परसेंटेज की, वो मैंने शो की है।
और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क की है वो भी इंक्रीज हुई है, 471 से 485 पहुंचा है। यहाँ भी 2.97% का इंक्रीज है। इसी तरह से एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, पर कैपिटा एग की अवेलेबिलिटी जो हमारी कंट्री में है, मतलब एक इंसान के हिस्से में, एक पर्सन के हिस्से में कितना एग आ रहा है, कितना दूध आ रहा है, कितना मीट आ रहा है, ये भी टेबल शो कर रही है। हाँ, मिल्क में हम जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेटा जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे मैंने ये प्रेजेंट किया कि अभी वर्तमान में हमारी क्या कंडीशन है। भाई जो भी हमारी ग्रोथ हुई है वो दोनों के इंटीग्रेशन से हुई है। आप देखोगे जो हम इंडिजिनस चीजों की बात कर रहे थे, इंडिजिनस नॉलेज की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका भी रोल है, कहीं ना कहीं मॉडर्न जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो साइंस है, उसका भी रोल है। दोनों ने मिलके ही इस कंडीशन में हमको पहुंचाया है कि आज हम जहां हम मिल्क के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड थे, हम मिल्क को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, आज वो हम सरप्लस हैं उस मामले में कि हम दुनिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड हैं। स्पीसीज वाइज भी अगर मिल्क कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो देख रहे होंगे इस टेबल चार्ट में कि इंडिजिनस बफेलो और क्रॉसब्रेड कैटल जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के। तो इंडिजिनस बफेलो जो अकेले ही देख लीजिए तो वो 31% दूध का हिस्सेदारी है, और क्रॉसब्रेड जो कैटल हैं वो भी 30% तक मिल्क में रोल अपना प्ले कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि जो इंडिजिनस हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे देसी एनिमल्स हैं, जो हमारे कंट्री के एनिमल्स हैं, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। तो उनका भले ही हमारे पास आज बहुत ज्यादा एक्सोटिक ब्रीड्स आ गई हैं, एक्सोटिक ब्लड का इंट्रोडक्शन हुआ है कंट्री में, पर आज भी कहीं ना कहीं जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं रोल उन इंडिजिनस ब्रीड्स का है। इसलिए मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था कि जो हमारी ग्रोथ हुई है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, इंडिजिनस चीजों को लेकर ही हुई है। अब हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मॉडर्न रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। इंडिजिनस नॉलेज ऑफ एनिमल बिहेवियर, कौन कौन से टर्म्स पर इंडिजिनस नॉलेज आप देख सकते हो चीजें चलती हैं। फीडिंग बिहेवियर कैसा है, वेदर का प्रेडिक्शन कैसा है, हीट को हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं एनिमल्स की, हेल्थ का इंडिकेटर्स क्या है, सोशल एंड मैटरनल बिहेवियर एनिमल्स का कैसे है। तो ये इन सारी चीजों की फार्मर्स को डीप अंडरस्टैंडिंग पहले से रही है कि फीडिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग पहले से एनिमल्स को रही है। एनिमल फीडिंग, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, गोट्स प्रेफर करती हैं ब्राउजिंग को, और ब्राउजिंग किसकी, श्रब्स और ट्रीज की। तो हमेशा हमारा फार्मर जो है एनिमल्स की रियरिंग करता है वो गोट्स को उस रीजन में ग्रेजिंग के लिए ले जाता है जहां पर श्रब्स और ट्रीज ज्यादा हो, उनकी ब्राउजिंग प्रेफर करती हैं गोट्स। कैटल जो है वो ग्रेजिंग करती है ग्रासेस पे, तो उनकी जो हम ग्रेजिंग कराते हैं, उनको चराने के लिए जब ले जाते हैं हमारे किसान गौपालक, तो वो ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां पर ग्रासेस लगे हो, ग्रासेस के फील्ड्स हो, पास्चर्स हो। तो ये जो नॉलेज है, ये लग सकता है कि हमको छोटी नॉलेज है, लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती आई है। और आज की जनरेशन में आप अपने किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ये भी बता सकता है कि कौन सी घास, कौन सा चारा किस सीजन में किस एनिमल के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। एक मैं अपना ही एग्जाम्पल फीडिंग में आपको देना चाहूंगा सबको कि मैं एक बार गाँव गया, मेरा एक डॉग था वहां पर, तो उसको मैंने पहली बार घास खाते हुए देखा। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये घास क्यों खा रहा है, तो कोई ग्रास एक खा रहा था। तो उन्होंने कहा है कि इसका स्टमक जो है वो अपसेट है, उसका पेट खराब है, तो ये वॉमिट करना चाह रहा है, ये वॉमिटिंग करना चाह रहा है, इसलिए ये घास खा रहा है। तो अब ये वॉमिट करेगा इसके बाद। और ऐसा ही हुआ, वो घर में अंदर आने के बाद उसने वॉमिटिंग की, और जो उसके जो भी इंडाइजेशन हुआ होगा वो सारा इंडाइजेस्ट कर दिया। तो इसलिए ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग, अब जैसे वेदर प्रेडिक्शंस हैं, तो फार्मर जो है वो एनिमल बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं वेदर चेंजेस को समझने में। जैसे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स है, अगर ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स हो रही है तो ये इंडिकेट करता है रेस्टलेसनेस है, एनिमल के अंदर बहुत रेस्टलेस है और वो ग्रुप कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रेनफॉल के लिए, हाई रेनफॉल कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन है। और अगर रिड्यूस्ड मूवमेंट है, बहुत कम मूवमेंट है एनिमल बॉडी में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो हीट स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हीट स्ट्रेस हो रहा है। जैसे अभी का टेम्परेचर है, कंट्री के बहुत पार्ट में 40 डिग्री के अबव टेम्परेचर जा रहा है, तो वहां पर देखेंगे तो एनिमल्स की जो एक्टिविटीज है वो रिड्यूस होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है।
This is particularly useful in areas where weather forecasting facilities are limited. और उन सारे regions में जहां weather forecasting कम है, उन जगहों पर ये बड़ी helpful चीजें हैं। इसी तरह से हेल्थ इंडिकेटर्स में देखेंगे, फार्मर्स इजीली डिजीज को उनके अर्ली स्टेज से ऑब्जर्व करके डिटेक्ट कर लेता है। आप ह्यूमन साइंस में तो आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है। अभी से कुछ 10-20 साल पहले देखोगे तो इतना पैथोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो इतनी प्रभावी नहीं थी। अब आज के टाइम में आप देखो, आपको फीवर आता है, टेम्परेचर 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 2 दिन तो हम लोग पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक लेते हैं, बट उसके बाद फिर देखेंगे ब्लड टेस्ट कराते हैं। कोई भी डॉक्टर पहले ही ब्लड टेस्ट को रिकमेंड करेगा। तो आज जो फिजिकल जो सिम्टम्स हम कहते थे सिम्टम्स हैं, जो अर्ली सिम्टम्स हैं, उसकी डायग्नोसिस कम हो गई है। सारे डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन साइंस में, तो वो डायग्नोसिस पुअर हुई है। क्योंकि पुअर क्यों होगी भाई? जब हमारे पास बैसाखी है अवेलेबल तो हम वैसे ही पुअर हो जाएंगे। तो हमारे पास जब रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, हम उसमें एग्जैक्ट दे सकते हैं कि भाई ये हमको डिजीज है या इससे अफेक्ट हुआ है। तो इसलिए हमारी बहुत सारी चीजें जो है ऑब्जर्वेशन, वो बिहेवियरल जो चेंजेस थे उनको देख के डायग्नोस करने का कम हुआ है। लेकिन अभी भी एनिमल साइंस में साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी है। वहां पर पैथोलॉजिकल टेस्टिंग के चांसेस विलेज लेवल पर, रूरल लेवल पर, इवन सिटीज में भी नहीं है। जहां पैथोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है एनिमल्स में, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में, वहां ये पॉसिबल है। तो वो सारी चीजें एनिमल साइंस में अभी नहीं एप्लीकेबल है। तो वहां पर आइदर डॉक्टर हो या रूरल लेवल पर फार्मर हो या उसका एनिमल रियरर हो, वो सभी लोग इसको अर्ली जो इसका स्टेजेस होती हैं ऑब्जर्व करने की, इनमें बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या हैं, उससे चेंज करते हैं कि डलनेस है, लिथर्जी है, एनिमल लिथर्जिक हो गया है, डल खड़ा हुआ है, रूमिनेशन, जो जितने रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, उनमें अगर उसका रूमिनेशन रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो वो एक अर्ली सिम्टम होता है। जो भी हमारा एनिमल होता है वो आइसोलेट हो जाता है, उस हर्ड से आइसोलेट होकर दूर चला जाता है, वो शांत बैठा रहेगा, ये एक अर्ली सिम्टम होता है। डंग की कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाता है, ये बड़ा स्पेशल सिम्टम होता है कई सारी बीमारी में। और बहुत सारे ये प्राइमरी लक्षण हैं। इसके बाद कई एडिशनल जो सिम्टम्स होते हैं उसको हमें समझना होता है, वो जो साइंस होते हैं उनको समझना होता है। इसी तरह से हमारे सोशल एंड रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होते हैं, वो भी एनिमल फार्मर्स उनको समझते हैं कि सोशल हायरार्की क्या है, मैटरनल बिहेवियर एनिमल्स में क्या है। दे आल्सो डिटेक्ट हीट यूजिंग साइंस, जैसे माउंटिंग बिहेवियर है, बेलोइंग है, चिल्लाता है एनिमल, रिड्यूस्ड फीड इनटेक, उसका फीड इनटेक है वो कम हो जाएगा, बलवा जो है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, माउंट करने लगेगा। तो ये बहुत सारे डिटेक्शन है जिससे डिटेक्ट किया जाता है। अब इसके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कौन सी प्रैक्टिस हम करते हैं, जो इंडिजिनस हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जो अभी तक पॉपुलर रही, कह सकते हैं कि हम लोग ये पॉपुलर रही हैं अलग अलग लेवल पर। इसमें यूज ऑफ मड, थैचेस, बम्बू एंड लोकल बोर्ड, हम सब जो भी गांव से जुड़ा हुआ वो जानता है कि भाई मिट्टी के घर बना दिए जाते हैं, बांस के, छप्पर के, इस तरह से थैचेस, बम्बू, लोकल लकड़ी को यूज करके ओपन हाउसिंग सिस्टम रखते हैं जिसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। ओरिएंटेशन एनिमल्स का, हीट स्ट्रेस कब कैसे कम रहेगी, कौन सा किससे एयर वेंटिलेशन कहाँ से ठंडा आएगा। आज भी अगर देखो तो ये इंडिजिनस नॉलेज गांव के लेवल पर ज्यादातर पशुपालकों को या लाइव स्टॉक रीडर्स को है कि भाई उनको क्या क्या चीज करनी है। काउ डंग की जो प्लास्टरिंग कर देते हैं, उसको प्लास्टर की तरह से दीवार पर लगा देते हैं, वो भी कूलिंग का काम करता है, कूलिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं। क्रॉप रेजिड्यूज को फाइबर की तरह प्रोवाइड कराना, ट्री लीव्स को यूज करना तो उससे मिनरल्स मिल रहे हैं, सीजनल ग्रेजिंग अगर कराते जा रहे हैं तो उससे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो अलग अलग प्रैक्टिसेस में अलग अलग तरह से चीजों में यूज होती हैं। जैसे इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि साथ में लास्ट कॉलम में आप देखोगे साइंटिफिक बेसिस भी है। तो अगर हम वीट ग्राम स्ट्रॉ दे रहे हैं किसी रीजन में एनिमल्स को, तो समर में ज्यादातर दिया जाता है। ऑल लाइव स्टॉक को ही हम लोग देते हैं। हमारा स्टेपल ड्राई फॉडर है, बेसल डाइट जिसको हम बोलते हैं। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और फाइबर का सोर्स होता है जितने रूमिनेंट्स एनिमल हैं जिनके अंदर भी रूमिनेशन होता है। मेजर हमारे पास जो हम रियरिंग करते हैं एनिमल्स की, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये रूमिनेंट्स होते हैं। तो इन रूमिनेंट्स एनिमल के रूमन के फंक्शनिंग के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। फाइबर किससे मिलेगा? स्ट्रॉ से। तो इसलिए स्ट्रॉ हमारे यहाँ की डाइट में मेजर रोल प्ले करता है हमारे एनिमल्स की डाइट में। ट्री लीव्स, बहुत सारी ट्री लीव्स हैं, नीम, बबूल, ढेरों लीव्स का यूज करते हैं पापड़ तक।
तो ये लीन सीजन्स में जब गोट और कैटल दोनों के लिए ब्राउजिंग सिस्टम होता है इसका, ये इंडिजिनस प्रैक्टिस क्या करते हैं ब्राउजिंग सिस्टम में, इसका साइंटिफिक बेस क्या होता है कि ये मिनरल सप्लीमेंटेशन एनिमल्स को देता है। नेचुरल ग्रासेस जितनी हैं वो हम पूरे मानसून में जब बारिश हो जाती है उसके बाद बहुत सारा ग्रास का कवर हमारे सारे जो भी लैंड खाली पड़ा है उसमें आ जाता है, तो वो सारे लाइव स्टॉक उसमें मानसून ग्रेजिंग करते हैं। और जिस रीजन में मैं रहता हूँ वहां तो फ्री ग्रेजिंग ही एक तरह का ट्रेंड चल गया, उसको एक प्रथा ला दी, अन्ना प्रथा इसको कहते हैं। तो ये पहले से चल रही है अन्ना प्रथा, बहुत 20-30 साल से, जब मैं आया मैंने भी यहाँ देखा अन्ना प्रथा। तो उसके पीछे रीजन देखा तो उनका यही था कि भाई जब हमारे यहाँ रिसोर्सेज अभी नहीं है तो नेचुरल ग्रास पे ये एनिमल्स डिपेंड हो जाएंगे और वो बैलेंस्ड अपना न्यूट्रिएंट्स का बना लेंगे, वो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाएगा। इसी तरह से क्रॉप रेसिड्यूज जो हमको, और क्रॉप रेसिड्यूज मिल बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारी चीजें जो मिलते हैं वो एनर्जी सोर्स होते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसके सीड हैं, सीड के बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज, ग्रेन्स हैं, ब्रोकन ग्रेन्स हैं, वो सारी चीजें फीडिंग में यूज करते हैं। तो उसको हम फीडिंग कैटल और बफेलो, लार्ज जो एनिमल्स हैं उनको हम देते हैं, क्योंकि एनर्जी सोर्स हमको चाहिए होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसका साइंटिफिक बेस स्टेबल में हम समझ सकते हैं। इसी तरह से फीडिंग के साथ ब्रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अलग अदा करता है किसी भी एनिमल लाइव स्टॉक सिस्टम के लिए, कि उसकी ब्रीडिंग किस तरह से चल रही है। तो ब्रीडिंग क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का हमारा रहता है वो लोग देखते हैं कि भाई मिल्क यील्ड हमारी होनी चाहिए, हार्डीनेस एनिमल के अंदर होनी चाहिए, कि एनिमल उस रीजन में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। काफी ऐसे रीजन्स हैं जो इस तरह के हैं, बड़ा हार्डी एटमॉस्फेयर है, जैसे जहां मैं हूँ वहां भी टेम्परेचर 45 एबव जा रहा है, 46। तो इस रीजन, ऐसे रीजन्स के लिए ब्रीड के अंदर उसमें जर्म प्लाज्म इस तरह का है कि वो सूट कर रहा है उस रीजन को कि नहीं कर रहा है, ये भी हमको ब्रीडिंग पॉलिसी में देखना पड़ता है। तो जो ट्रेट हम मेजर टेबल में देखेंगे पहली कॉलम में, डिजीज रेसिस्टेंस, डिजीज के अगेंस्ट उसमें रेसिस्टेंस होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी हाई रहती है। तो हमारी जितनी इंडिजिनस ब्रीड्स थी, जो हमारी देसी ब्रीड्स थी, नस्लें हैं एनिमल्स की, वो आप देखोगे डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस है। और जैसे जैसे क्रॉस ब्रीडिंग हुई, जैसे जैसे एनिमल्स बाहर का ब्लड, यूरोपियन कैटल का ब्लड हमारे इंडियन ब्रीड्स में आया, तो कहीं ना कहीं ससेप्टेबिलिटी डिजीज के अगेंस्ट बढ़ी है। तो इंडिजिनस अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे ये थी कि एनिमल्स सर्वाइविंग हार्श क्लाइमेट प्रेफर्ड, ऐसे क्लाइमेट में हमारे इंडिजिनस एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं। ड्रॉट की एबिलिटी होनी चाहिए, तब पहले के टाइम में ड्रॉट पावर का यूज किया जाता था, तो इस तरह के एनिमल्स देखे जाते थे कि भाई खींचने की शक्ति हो, ट्रांसपोर्टेशन में हमको कहीं बैलगाड़ी में जाना है, सामान भर के जाना है, तो वो ऐसे एनिमल्स हम उनको यूज कर सकें। तो स्ट्रॉन्ग लिम्स हो, उनके एंड्योरेंस पावर ज्यादा हो, तो इस तरह के एनिमल यूज करते हैं। आप भी देखो आज कैमल राजस्थान का ही एनिमल है, राजस्थान का लाइव स्टॉक है, तो राजस्थान में उसकी एंड्योरेंस पावर ज्यादा है, वहां पानी नहीं मिलेगा तो भी वो कई कई घंटे सर्वाइव कर जाता है। तो इस तरह से वो उस रीजन के लिए वहां की नीड हो जाती है एनिमल्स की। फर्टिलिटी देखेंगे तो फर्टिलिटी भी मीडियम इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में, जो हमारा इंडिजिनस लिटरेचर जो कहता है उसमें। रेगुलर काविंग इंटरवल एक इंडिकेशन था कि रेगुलर हमको काविंग होनी चाहिए एनिमल्स की। तो सबको आइडिया था कि भाई एक साल में एक गाय बच्चा देगी, 15 महीने में एक भैंस बच्चा देगी, तो ये हमारा एक ट्रेंड चला आ रहा था। एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एडेप्टेबल हो पा रहा है एनिमल कि नहीं हो पा रहा है, तो ये उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि उस रीजन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत क्रूशियल है। जो लो इनपुट सिस्टम में फार्मर के लिए, जहां पर इनपुट कम लगा पा रहा है फार्मर, वहां ये एसेंशियल है कि वो एनिमल अडेप्ट होना चाहिए। ज्यादातर जो ब्रीड्स हैं वो हर एक रीजन की अलग अलग है। आज हम देखें कैटल की 53 ब्रीड्स हैं हमारे कंट्री में, तो वो पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, वो सारी ब्रीड्स अलग अलग रीजन में फैली हुई हैं। लेकिन कुछ ब्रीड्स को आप देखोगे जिनके कॉमन नाम है, साहिवाल है, गिर है, थारपारकर, ये हरियाणा है, ये ब्रीड्स दूसरे रीजन में भी गई, तो इनकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाया गया कि भाई मिल्क प्रोडक्शन हमें कंट्री का बढ़ाना है, तो इनकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाया गया। बट जो लो इनपुट सिस्टम है, अब ये ब्रीड, जब कोई ब्रीड अपने रीजन छोड़ के दूसरे रीजन में जाएगी तो वहां पर हमको हाई इनपुट सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसके रियरिंग पर, उसके फीडिंग पर, उसकी चीजों पर। बट जो हमारे यहाँ की ब्रीड होगी उस पर हमको कम एक्सपेंस देना पड़ेगा। बिहेवियरल साइंस है ये ईस्टर सिम्टम्स के, किस तरह से हीट में आता है एनिमल, किस तरह से करता है, और
ये सारी चीजें इंडिजिनस लेवल से तैयार हुई हैं। इसमें साइंस एक अलग चीज है, साइंस अलग तरीके से हीट को डिटेक्ट करती है, बट ये एक आइडेंटिकल रीजन है, वजह है जिससे हम टेक्नोलॉजी से समझ पाते हैं कि इंडिजिनस लेवल पे फार्मर कैसे इसको समझता था कि भाई एनिमल अब हीट में है, तो इस देर से इस देर के बीच में इसका क्रॉस कराओ, इस टाइम से इस टाइम के बीच में क्रॉस कराओ, तो ये कंसीव कर जाएगा। तो आज जब हम साइंस में इसको, मैंने इस टेबल को उठाया है, इस फिगर को, तो यही साइंस शो कर रही है कि भाई कमिंग इनटू हीट, पहले 8 घंटे होते हैं वो हीट में आता है, तो स्टेंस होगा, खड़ा हो जाएगा एनिमल, बेलोइंग करेगा, स्मेल करेगा दूसरी काऊ को, चढ़ने की कोशिश करेगा, रगड़ने की कोशिश करेगा दूसरे एनिमल से। बट अगला जो हीट आता है उस 8 घंटे के बाद का अगला पीरियड है, उसको हम स्टैंडिंग हीट कहते हैं। उसमें एनिमल हीट में खड़ा हो जाएगा और अपने ऊपर दूसरे एनिमल को माउंट होने देगा, चढ़ने देगा। तो ये 4 to 18 आवर्स का पीरियड जो रहता है, इसमें भी आप देखोगे 4 to 16 आवर्स का जो नीचे आप देख रहे होगे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ब्रीड। इस टाइम हमको ब्रीडिंग या क्रॉस कराना चाहिए। अगर हम थोड़ा पहले करा लेते हैं तो अर्ली हो जाता है 16 घंटे, और अगर हम इसको 24 घंटे तक भी ले जाते हैं तो फेयर होता है। तो आज जो प्रॉब्लम आ रही है ग्रामीण लेवल पर, आप देखते हो कि कंसीव नहीं करता है एनिमल, रुकता नहीं है, हमने उसको गर्भित कराया और रुक नहीं रहा है, तो उसमें यही टाइमिंग का बड़ा खेल होता है कि हमने कब उसको, वो जो पुराने जानकार थे वो बहुत जल्दी समझ जाते थे कि भाई ये हीट में आ गया एनिमल, वो उठते ही समझ जाते थे कि ये एनिमल है, इतनी देर से आया होगा, इतने घंटे हो गए, तो अब इसके बाद अब हमको इसका क्रॉस कराना है, तो तब ये कंसीव करेगा, तब हमको अच्छा मिलेगा। नहीं तो अगर एक हीट मिस हो गई तो आप फिर वेट करो अगले दिन, तो ये हमारा लॉस है ना एनिमल का। भाई हम किसी भी एनिमल को रखे हुए हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी से, और प्रोडक्टिविटी जुड़ी किससे? रिप्रोडक्शन से, उसकी ब्रीडिंग से। तो अगर ब्रीडिंग प्रॉपर है, रिप्रोडक्शन प्रॉपर है, तो हमारा जो कॉमर्शियल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो भी वो रहेगी, प्रॉपर रहेगी। ट्रेडिशनल हाउसिंग सिस्टम, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर ढेरों हाउसिंग सिस्टम देखे होंगे। कुछ एग्जांपल मैंने भी रखे हैं। मड हाउसेस होते हैं, मिट्टी के हाउस बने हुए हैं, उसकी छप्पर की रूफिंग कर देते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन बना देते हैं, ओरिएंटेशन सनलाइट का, विंड का प्रॉपर रहता है। इस तरह से अलग अलग रीजन में, पूरे कंट्री में हमारे बहुत सारे रीजन हैं, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, उसमें वो सारे एनिमल्स वहां पर सर्वाइव करते हैं। एथनो वेटरनरी प्रैक्टिसेस, सुना होगा ये टर्म कुछ लोगों ने। तो जो वेटनरी की, हमारा पशु चिकित्सा की प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से इंडिजिनस लेवल से जुड़ी हुई है, कहाँ वहां पर हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का, देसी प्रोडक्ट्स का ही यूज करते हैं, वो एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। पशु चिकित्सा में हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, केमिकल मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, हम देसी चीजों से उसका इलाज करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका, जब हमारा ट्रेडिशनल जो एनिमल हेल्थ केयर है, ये बहुत ज्यादा आज भी प्रचलित है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास वेटनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पहले भी बताया कि वेटनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत पुअर है अभी कंट्री का, इतना बड़े लेवल पर नहीं है। बहुत केवल बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जिलों में भी, शहरों में भी बहुत डॉक्टर्स कम है, वेटनरी ऑफिसर्स कम है, तो वो अभी जितने एनिमल्स हैं उसके रेशियो बहुत कम है डॉक्टर और एनिमल्स का। तो हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की कॉस्ट बहुत है। तो लेकिन अगर हम एथनो वेटरनरी प्रैक्टिसेस करते हैं, देसी चीजों को यूज करते हैं दवाई में, तो ये अफोर्डेबल है, फार्मर उसको अफोर्ड कर सकता है, इजीली अवेलेबल है, कहीं भी एक्सेस कर सकता है, उसके पास में अवेलेबल हो सकता है, उसके कहीं रीजन में ले सकता है। इको फ्रेंडली है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। भाई आजकल केमिकल मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगे हैं, बट अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ देखते हैं, देसी उपचार की तरफ देखते हैं, तो वो इको फ्रेंडली है, उनका एटमोस्फियर पर और हम पर कोई साइड इफेक्ट नहीं। हेलो, कोई कहना चाह रहा है कुछ? एक्चुअली किसी का माइक म्यूट कर दिया सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैम सर, कंटिन्यू प्लीज। मयंक सर,
Hello, Mayank sir. मयंक सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मयंक सर, हेलो। हाँ, म्यूट है सर आप। हाँ ओके, नाउ ऑडिबल ना? हाँ हाँ अब तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। दिखाई भी दे रहा है? जहाँ में स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? हाँ सर, हाँ हाँ सर। ठीक है, ठीक ठीक है। मैं बता रहा था कि जो ब्लोट डिजीज है वो बड़ा कॉमन डिजीज है, अफारा जिसको हम कहते हैं ग्रामीण लेवल पर। तो इसमें ऑयल ट्रेंचिंग मस्टर्ड ऑयल से कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मस्टर्ड ऑयल इफेक्टिव है। इसमें कई रीजन में अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, जहां जिसमें इवन मैंने साउथ इंडियन लिटरेचर भी देखा है, तो वहां पर कोकोनट ऑयल का भी यूज करते हैं। तो कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी यूज आप कर सकते हो। इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है कि जो इसका सरफेस टेंशन होता है फोम का, जो अंदर होता है, उसको कम करता है। तो जो गैस भर जाती है उसको, उसका एक्युमुलेशन जो हो जाता है गैस का, उसको कम करता है ये ऑयल। इसी तरह से डायरिया एक बड़ी कॉमन डिजीज है। ज्यादातर न्यू बॉर्न जो एनिमल्स होते हैं उनमें डायरिया बहुत कॉमन है। तो यहाँ भी हर्बल मिक्सचर दिया जाता है किसका? बनाना लीव्स और टर्मरिक का करके। कई जगह बनाना फ्लावर्स भी यूज करते हैं, कई जगह बनाना लीव्स को भी यूज करते हैं, उसका स्टेम भी यूज करते हैं और टर्मरिक के साथ में। तो ये जो इसका साइंटिफिक बेस है वो ये है कि ये बनाना लीव्स एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, और टर्मरिक जो है, हल्दी हम लोग जानते हैं एंटीसेप्टिक, हम भी जानते हैं चोट लगती है तो हम हल्दी लगा लेते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये इसका साइंटिफिक बेस है, बट ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है डायरिया के लिए। इसी तरह से जब चोट लग जाती है, बाउंस चोट लग जाती है, तो नीम के ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं, नीम का एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, हल्दी का भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, नीम के अंदर। तो ये इस तरह से कोई माइक्रो वहां पर ग्रोथ ना करे, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसको रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल रिपेलेंट का यूज करते हैं। रिपेलेंट भी होता है, रिपेलेंट मीन्स मक्खी मच्छर जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं उनको दूर करता है। कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स उस पर नहीं लगेगा अगर नीम का हम एक्सट्रैक्ट लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से रिटेंड प्लेसेंटा एक बड़ी कॉमन डिजीज है। रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रुक जाती है बहुत देर तक, निकलती नहीं एनिमल्स के साथ में, जबकि ये वापस आ जानी चाहिए। जियर जिसको हम कहते हैं, गिरती नहीं है एनिमल में, लटकी रहती है। तो इसको भी देने के लिए अगर ये नहीं दिख रही है तो ट्रेडिशनल फीड मिक्स एक हमने देखा है कि इसका बहुत असर है, बहुत इफेक्टिव है। सीसेम ऑयल जागरी के साथ मिला के यूट्राइन कंट्रक्शन को बढ़ाता है, जिससे ये गिर जाती है। वर्म का इन्फेस्टन रोकने के लिए पंपकिन सीड्स, नीम, तो डिफरेंट ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग रीजन में अलग अलग लेवल पर यूज की जाती है। इसी तरह से कोई सिक एनिमल है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसके ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है, उसका अडर कैसा है, रूमेन कैसा है, मिल्क कैसा है, आईज और नोज किस तरह से शो कर रहे हैं, स्किन और कोट का कलर कैसा शो हो रहा है, लेग्स और जॉइंट्स कैसा है, रूमिनेशन कैसा है, जनरल एटीट्यूड क्या है। ये सारी चीजें पूरी एक स्टडी होती है जो इंडिजिनस लेवल पर जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फार्मर लेवल पर, उनके लाइव स्टॉक ऑनर लेवल पर ये इंक्लूड की गई हैं, और इसको एक जगह पर लगा के मैंने इसको फीड किया कि भाई इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग जगहों पर ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिजिनस जो नॉलेज है इसका क्लाइमेट रेजिलेंस में भी बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब कोई भी इंटीग्रेशन देखते हैं कि भाई पुरानी प्रैक्टिस का और नई प्रैक्टिस का, आज के टाइम में आप देखोगे कि नई टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, हमने एलोपैथिक दवाई ली और तुरंत उस इफेक्टिव हुई, बट कहीं ना कहीं वो हमारे जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, वीक कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को पुअर कर रही है। बट पुरानी जो आयुर्वेदिक दवाइयां थी या पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी थी, उसकी चीजों को हम यूज करते थे, तो क्या इफेक्ट होता था? उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी बढ़ती थी। तो आज के समय पे सस्टेनेबिलिटी की बड़ी डिमांड है कि भाई जो चीज हो वो सस्टेनेबल है या नहीं है।
कई बार चीजें पूछते हैं गवर्नमेंट लेवल पर या बड़े हायर लेवल पर, रिसर्च में या एकेडमिक लेवल पर, कि भाई कोई हम प्रपोजल तैयार करते हैं, कोई रिसर्च तैयार करते हैं, तो वो सस्टेनेबल है कि नहीं। सस्टेनेबल मीन्स ये है कि क्लाइमेट के अगेंस्ट उसका क्या असर है, भाई क्लाइमेट रेजिलेंट है कि नहीं है। तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इफिशिएंटली कर पाना, सर्वाइवल ऑफ लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग फॉडर स्कर्सिटीज, मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी अंडर स्ट्रेस, ये सारी चीजें उसको कनेक्ट करती हैं। तो इसमें क्या है कि ड्रॉट टॉलरेंट जो हमारे फीड रिसोर्सेज हैं उसका यूज जितना हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग करता है। सीजनल माइग्रेशन जो है वो एनिमल्स का इधर से उधर जाना, या हमारे वेजिटेटिव जो ग्रोथ है उसका भी माइग्रेशन होता है। और वाटर कंजर्वेशन जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। जैसे हम लोग देखें अन्ना प्रथा जो हमारे यहाँ चलती है, नीम बेस्ड जो पैरासाइट कंट्रोल है, ऑयल थेरेपी है, ये सारी चीजें इनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इंडिजिनस नॉलेज के लिए, इसीलिए ये सस्टेनेबल मानी जाती है। ये उसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है कि किस तरह से उसका क्या असर रहता है, क्या सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हो उसमें कि भाई ग्रेजिंग अगर करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस है इफिशिएंट एडाप्टेशन टू द फॉडर स्कर्सिटी, जो हमारे यहाँ चारे की कमी हो जाती है उस स्कर्सिटी से ये अडॉप्ट कर जाए एनिमल हमारा। नीम बेस्ड पैरासिटिक कंट्रोल है तो इसका एंटी माइक्रोबियल, मैंने आपको बताया एंटी पैरासिटिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मस्टर्ड ऑयल का तो लो कॉस्ट होता है, वाइडली प्रैक्टिस सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से उसको हमने डिटेल में दिखाया है। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड लिमिटेशंस, मतलब क्या वजह है कि क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसके पीछे जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जिसपे हमको डाउट होने लगता है। कई बार हम ही सुनते हैं किसी से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, बट इसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन है कि नहीं। भाई जब हम जाने चीजें हमारे हाथ में आ गई, गूगल हमारे हाथ में है, हम तुरंत चीजों को सर्च करने लगते हैं, तो हम साइंटिफिक वैलिडेशन देखना चाहते हैं कि भाई कोई चीज बताई जा रही है तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है कि नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ चीजें आपको, कुछ टेक्नोलॉजी बताई, कुछ प्रैक्टिसेस बताई, तो आगे एक कॉलम में साइंटिफिक वैलिडेशन भी लिखा कि ऐसा क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से ये जो है, इसमें कमी है अभी हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज है उसके लिटरेचर में। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, पुअर है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है कहीं भी। अभी भी मैं एक मीटिंग में था, वहां पर एक किसान ने कहा कि हमारे पास गांव में बहुत टेक्नोलॉजी है सर, लेकिन वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वही चीज मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिखा कि पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं। उन्होंने कहा कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विज्ञान केंद्र में मीटिंग थी, कि कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों को ऐसा करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। उस नॉलेज को अगर हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और फ्यूचर को फिर से देना है, तो हमें उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ग्रेजुअल इरोजन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज सभी लोग खेती ट्रैक्टर और मशीनों से कर रहे हैं, थ्रेसर तो बैलों की जरूरत नहीं है। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ग्रेजुअल इरोजन हो रहा है। तो अब जब बैल की जरूरत ही नहीं है तो बैल अच्छे कैसे होते हैं ये कोई बता नहीं पाएगा फ्यूचर में। एक दो जनरेशन और बताएगी, उसके बाद की जनरेशन कभी नहीं बता पाएगी कि ये बैल क्यों अच्छा है, अच्छे बैल की क्या पहचान होती है। क्योंकि हमने तो ट्रैक्टर देखे, हम ट्रैक्टर में हॉर्स पावर बता सकते हैं कि ये इतना हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर इस ब्रांड का इस मॉडल का लेंगे तो वो अच्छा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम है। लिमिटेड अवेयरनेस अमंग यूथ, जितने हम जैसे यूथ हैं, गांव से कम टाइम रहा जुड़ा, गांव के बाद शहर में आ गए, शहर से रखने लगे, पढ़ने लगे, हॉस्टल लाइफ, नौकरी में चले गए, जॉब करने लगे, तो हमारा गांव से और गांव के लोगों से, मतलब हमारे भी ग्रैंडफादर के टाइम पास बैठने का टाइम ही कम रहा, तो हम नहीं मिले, तो हमारे पास अवेयरनेस कम आई। वो जो नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर आने लगे। सम प्रैक्टिसेस में भी लेस इफिशिएंट, कुछ हो सकता है प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जो हमने कभी अप्लाई की और वो इफिशिएंट नहीं रही। अब जरूरत किसकी है कि इंटीग्रेशन हो। भाई इनको इंटीग्रेशन करना आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आवश्यक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी डिमांड है, और एक्चुअल में जो हमारी स्पीड है, आज हमारे लिए स्पीड इंपॉर्टेंट हो गई। टाइम है नहीं किसी के पास, बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो सबसे पहले जो हमारी अप्रोच है वो यही होना चाहिए कि वैलिडेशन ऑफ एथनोवेटनरी प्रैक्टिसेस, जितनी भी हमारी मेडिकल से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस हैं उनका वैलिडेशन जरूरी है। उनको साइंटिफिक ही किसी भी उससे वैलिडेट हम कराएं। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत नाम सुन रहे होंगे, बहुत काम चल रहा है नेचुरल फार्मिंग पे। आज उसकी भी लैब बन गई कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका प्रोडक्ट है, इसकी जांच कराएं, तो वो उस पर टैग लग जाएगा, तो फिर आपका प्रोडक्ट की वैल्यू होगी।
क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन उसको मिल जाएगा। कंबाइनिंग ट्रेडिशनल फीडिंग विद बैलेंस राशन, जो बैलेंस राशन साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन राशन है एक एनिमल के लिए, उसके साथ में ट्रेडिशनल फीडिंग को भी रखें, तो हमारा लो इनपुट सिस्टम भी मेंटेन रहेगा, उस पर एक्सपेंस कम रहेगा, और साइंटिफिक अप्रोच भी फीडिंग की चलती रहेगी। यूज ऑफ इम्प्रूव ब्रीड्स विद लोकल एडेप्टेबिलिटी, मैंने कहा साहिवाल पूरे इंडिया में पॉपुलर होती जा रही है, जबकि हरियाणा की ब्रीड है। तो क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी उसके अंदर अच्छी है, वो लोकल लेवल पे वो केरल में भी एडेप्टेबल हो जा रही है, वो राजस्थान में भी एडेप्टेबल हो जा रही है, वो एमपी में भी हो जा रही है, वो बिहार में भी हो जा रही है, वो यूपी में भी हो जा रही है। तो इस तरह से उसकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये जो इम्प्रूव ब्रीड्स हैं उसका हमें क्रॉस ब्रीडिंग में यूज करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग हो, फार्मर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो कि वो इंडिजिनस नॉलेज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको वैलिडेट करवाएं। डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन भी जरूरी है, मैंने पहले ही कहा कि भाई डिजिटल प्रिजर्व इसको करना है। आजकल डिजिटल जमाना है, धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंट हो और फिर डिजिटली इसका एक्सटेंशन हो, लोगों तक पहुंचे। इसके लिए ढेर सारी पॉलिसीज हैं जो बनानी पड़ेंगी हमको। कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, रूरल लेवल बेस्ड करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसमें इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि जो हमारी आईटी केस हैं, जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, उसको कहीं ना कहीं हमको आगे लेके आना पड़ेगा। एक्सटेंशन सर्विसेज जो है हमारी, उसको भी सपोर्ट करना होगा। ये एक मॉडल है जो ट्रायंगल है, ये शो कर रहा है कि भाई इंटीग्रेशन जो हमारा होगा इंडिजिनस नॉलेज का और वेटनरी साइंस का कैसे काम करेगा। तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम साइंटिफिक वैलिडेशन करेंगे और देन उसका एक्सटेंशन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उसका एक्सटेंशन करेंगे, तब हमारा जो लाइव स्टॉक सिस्टम है वो सस्टेनेबल बनेगा। ये 3 स्टेप में हम चीजों को करके अपने लाइव स्टॉक सिस्टम को सस्टेनेबल बना सकते हैं। Now I am coming on the conclusion part of my topic. देखना, indigenous knowledge of animal behavior and husbandry practices is a valuable and time tested resources. ये valuable है, हम no doubt हम सब जानते हैं, time tested है, that supports sustainable livestock production under harsh environmental condition. जितना भी harsh environmental condition है हमारी कंट्री की, उन सब में sustainable livestock, मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ कि sustainability बनाए रखना आज नहीं तो कल हमारे लिए जरूरी होगा ही। बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट कहीं ना कहीं अभी इसमें लो कॉस्ट है, अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं, इनका हमें साइंटिफिक वैलिडेशन देखना होगा। इंटीग्रेशन, मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जैसा मैंने पीछे चार्ट दिखाया था, उससे हमको इफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को एनिमल्स की इंप्रूव करना पड़ेगा। इस नॉलेज को हमें प्रिजर्व और प्रमोट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रूरल लाइवलीहुड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का गोल हम प्राप्त कर पाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न साइंस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। जो हमारा सस्टेनेबल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट गोल जो कंट्री ने बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका एक पार्ट है ये भी। उसके लिए हमारा जरूरी है कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मॉडर्न साइंस को भी कहीं ना कहीं बाइंड करके चलेंगे। So thank you from my side. Thanks to all. Thanks to organizers, Adamas University, Meadow Agriculture, for providing me this beautiful platform to interaction with all participants. And thanks to all participants for listening me how this patiently. Once again, I thank you all for your time and support. I would be happy to take any questions if anybody want to take. Thank you so much, sir.